Hello student, very good morning all of you. Most welcome in SVN Inter College, Kalan Sultanpur. I am Ram Naresh Yadav. Today we are going to learn the fourth lesson of prose. The prose lesson is really very interesting, and the lesson name is that you can see on the whiteboard the rat trap. The rat trap written by Selma Lagerlöf. Lesson The Rat Trap by Selma Lagerlöf is a very nice lesson, and in this lesson we are going to learn the brief summary of the lesson so that you can get easy way to get the actual stuffs and the actual story of the lesson, and the brief summary of the lesson will help you in many ways. And what is the motto of the lesson is already on the whiteboard. You can say that the story conveys a universal message that the essential goodness in a human being. Other thing is that material benefits are the traps that most human beings are prone to fall into. Like that, you can say that the actual motto of the lesson is that the man always runs here and there in search of materials benefit, and he fell into the rat trap of human life. Here we can say that the lesson is really very interesting and praisable without any doubt. The summary of the lesson is that there is a man in a story who was a rat trap seller. He sells rat traps, and with the help of the rat traps he leads his life. He tries to earn his livelihood, but the earning of the man was not so much, and due to the miserable condition and due to the poverty, he had to commit theft sometimes. The man was a great wanderer in the lesson, and one day when he was thinking about his lifestyle, he got a current idea in his mind that like the rat trap, all the world is running all around it, and man is like a rat trap, and he fell into and got a lot of miserable condition and calamities in his life. So that you can say that one day when the rat trap seller was wandering here and there, he was very tired, and due to the tiredness he can't get any shelter anywhere, and he saw a small cottage of an old man. He went there for the shelter, and the old man welcomed him and gave him shelter to stay for the night. And old man was a crafter at Ramsjo Iron Work. Old man was a crafter of Ramsjo's iron workshop, and
he word had so much, he started chatting to the stranger, and the traveler amazed so much at the very polite behavior of the old man. And old man was alone in his house, and he got a guest. Today he started a discussion about his life, and he told him that he had a cow. He told him that he pet a cow, and with the help of the milk of the cow, he got milk, and with the help of the milk, by selling the milk, he will get money, and in a small pouch he put 30 kronors in it, and he showed him. He did not hide anything to the stranger, and the stranger thought that the man was really very amazing and wonderful person. He did not hide anything. He showed three notes of kronors, and again he put it, again he placed it on its place again, and he hung a leather pouch in its place at the time, and they slept. And early in the morning, old man wake up, and the stranger, also the rat trap seller, wakes up and went. And after some time, rat trap seller came again in his house, and without opening the door, he went near the window, broke it, and picked the pouch of the 13 kronor. You can say easily that he stole the 30 kronors and hurried up. He decided not to walk on the public highway. He decided not to walk on the public highway, but he will go through the other way. He entered in a big forest, and the forest was full of very confusion, and he did not get any way to exit from it. After that, he became very helpless, and he thought that he also fell in his trap himself. And after some time, he heard a regular hard thumping in the forest, and he went there and saw some people are working there, and it was a Ramzo's iron workshop. At that place, goldsmith was working, and he was very busy. He wanted a permission to stay there. He nodded his head, but did not utter a word. He slept there. After some time, iron master came and thought that he was his friend, and thought that he was a Captain Van Steel, and he thought that he was his friend. He offered him to take him to his house, but the trap seller did not like it. He thought that he has a 30 kronor, and with the help of the 30 kronor, if he was caught there, he will be punished. Due to it, he rejected the offer of the iron master. After that,
his after that his daughter came again. His daughter came again and requested him to go to his house. His name was Adla Manson requested the captain to go to his home at the evening of the Christmas. She wanted to celebrate in the company of the captain, but he was not really a captain. It was only the opinion of the father and daughter that he was a captain. He was a thief, he was a rat trap seller and nothing. But at the request of the Adlaville Manson, he went there, and after some time when he took a bath and took a new cloth, Iron Master recognized him that he was not his friend. He cheated him. He told him to go at once at that place, but the Adlaville Manson did not like it because the guest was called by him, and the Christmas is on the previous day. So he shut the door and rejected the question of his father and showed a sympathy to the rat trap seller, and he stayed there and taking food. He slept there for a long time, and because he did not get any sleep for a long time, and this kind of respect and this kind of a comfort was not founded by the person in his life, because the life of the rat trap seller was really very miserable and full of difficulties. Here the rat trap seller enjoyed the ceremony of Christmas day. He got it, but he slept for a long time. He took food and slept again, and in the morning he went there, and his opinion changed. He thought that this kind of a respect, this kind of a love, affection, and very wonderful behavior and very soothing behavior was got by the rat trap seller. He changed his mind, and he left a package for the Adlaville Manson, and he put the 30 kronor in that packet. And when Adlaville Manson and his father returning from the church, they heard that an old man lost his 30 kronor, and the Adlaville Manson thought that it was the man who stole the money. He became very shameful at this, and they thought that he was a thief. He will steal the things of his house. And when they came and asked his servant told them that he did not take anything from his house, but he left a package. When Adlaville Manson opened the package, he got 30 kronors, and he shocked so much that this kind of a man changes his opinion, and he got 30 kronor. That was a big thing for the man, and he put a letter. He put a letter in the package. The rat trap seller gave a thank to the Adlaville Manson for his sympathy, for his love and affection, for the very, very soothing behavior of the Adlaville Manson, and thus you can say that the story get ends at this, because the Adlaville Manson also get a good behavior. The story tells us that every person have
unique qualities. If you will behave with him in a soothing way, he will change his opinion, and bad person is not by birth, and every evil ideas will be vanished with the help of the soothing behavior. Thus the story ends. तो इस प्रकार से इस कहानी में अभी हमने देखा कि जो ब्रीफ समरी हमने इस पाठ की अंग्रेजी में देखा, अब हम इस लेसन की समरी हिंदी में समझेंगे, जिससे स्टूडेंट्स को आसानी हो स्टोरी को जानने में, समझने में, उसके क्वेश्चंस को करने में, मोटो ऑफ द लेसन को समझने में, और ये सारी चीज़ें जानने में सहायता हो। और आपकी हर प्रकार की सहायता के लिए हम आपके साथ हैं। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। इस कहानी में इस कहानी की जो थीम है, इसमें ये बताया जाता है कि हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। भले ही वह व्यक्ति बुरा हो, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण और व्यक्तिगत गुण जरूर होते हैं। और ये कहानी ये बताती है कि एक बुरे व्यक्ति को भी एक बेहतर व्यक्ति बनाने में हमारा जो आचार विचार और व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिस्थितियों के दास हैं, परिस्थितियों में आकर गलत कार्यों को करने लगते हैं, और समाज भी उन्हें प्रताड़ित और पीड़ित करके उन्हें गलत मार्ग की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इस कहानी में एक व्यक्ति है जो कि एक बड़ा घुमक्कड़ है, गरीब व्यक्ति है, और वो चूहेदानियों को बेचकर अपनी जो है रोजी रोटी कमाता है। लेकिन चूहेदानियों को बेचकर भी उसके जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। वह इधर उधर भटकता रहता है, परेशानी में रहता है, और उसके न रहने का ठिकाना है, न भोजन का ठिकाना है। चूहेदानियों को बेचने पर भी जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वह जो है छोटी मोटी चोरियां भी करता है, जिससे उसका जीवन चल सके, और अपने जीवन में वह चूहेदानियों को बेचने का कार्य करता है। एक दिन वह अचानक उसके मन में एक बड़ा ही अच्छा विचार आ जाता है, एक दार्शनिक विचार आ जाता है कि ये संसार के लोग जो है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक संसार है, इस संसार के सभी लोग इस चूहेदानी रूपी माया मोह में पड़े रहते हैं। तो एक दार्शनिक विचारधारा उसके मन में आती है, जो कि एक बड़ी बात है। इसमें जो है राइटर ने, जो सेल्मा लेज़रलॉफ ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मानव जीवन से संबंधित इस तरह की बहुत सी जुड़ी हुई बड़ी ही गहराई से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और वह व्यक्ति चूहेदानियों को बेचता हुआ एक दिन बड़ा थका हुआ जो है सड़क पर चल रहा है, अचानक एक झोपड़ी के पास पहुंचता है। उसे आश्रय की सख्त ज़रूरत है, आश्रय पाना चाहता है, और वह एक बूढ़े व्यक्ति के दरवाजे को खटखटाता है। बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और उसे जो है बहुत ही सम्मान के साथ रात्रि भर के लिए शरण प्रदान कर देता है। वह बूढ़ा व्यक्ति जो है, एक समय था जब रैम्स जो वर्कशॉप में काम किया करता था, वह जो क्राफ्टर था राम रैम्सो वर्कशॉप में, वह जो उसे स्वागत करता है और बहुत ही सम्मानपूर्वक उसे अपने घर में बैठाता है। और इधर वह जो है उसके भोजन की भी व्यवस्था करता है, जो है उसके भोजन के लिए दलिया जो है हांडी में चढ़ा देता है और उससे बातें करने लगता है। वह बड़ा प्रसन्न है क्योंकि उसके घर में कोई नहीं है, वह बिल्कुल एकाकी जीवन जी रहा है। और आज उसके घर पे अगर कोई आया है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत गुड फील हो रहा है। उसके बाद वह व्यक्ति उससे अपनी कोई भी ऐसी बात नहीं है, हर गुप्त बातों को भी वह बता देता है। और एक छोटे से थैले में, चमड़े के छोटे से थैले में वह जो है कुछ क्रोनोर्स मुद्रा है जो कि स्वीडन की मुद्रा है वो रखा है। 3 क्रोनोर के नोट हैं जो कि 30 क्रोनोर हैं, और इस 30 क्रोनोर को
वह जो है उसे लाकर उसके हाथ पे रख देता है, उसे दिखाता है कि मेरे पास 30 क्रोनोर्स हैं, और वो छिपाना नहीं चाहता है। उस रैट ट्रैप सेलर को जो है बता देता है और पुनः ले जाकर उस छोटी सी चमड़े की पोटली में उसे ले जाकर वो टांग देता है। और इस तरह से इसके बाद वह उसके साथ जो है पत्ते ताश भी खेलता है और बातें करता है, सारी चीज़ें जो है अपनी ओपन कर देता है और दोनों सो जाते हैं। और वो ये बताता है कि वो अपना जीवन जो है, इस समय उसके पास एक गाय है, गाय के दूध से वो मक्खन निकालता है और उसके दूध को बेचकर ये 30 क्रोनोर की कमाई उसने की है। इस तरह से वो ये कार्य पूरा करता है और 30 क्रोनोर्स वो जो है उसे दिखा भी दिया है। और बूढ़ा व्यक्ति भी अपने काम पे चला जाता है। अपने काम पे जाने के बाद पुनः जो है रैट ट्रैप सेलर जो है पुनः उसके घर पे आ जाता है और उसे ये पता है रैट ट्रैप सेलर को कि बूढ़े आदमी ने वो 30 क्रोनोर कहाँ पे रखे हैं, और 30 क्रोनोर को चुराने की विचारधारा उसके मन में आ जाती है। और वो खिड़की को तोड़कर उस छोटी सी पोटली को ले लेता है और उसमें से 30 क्रोनोर को निकाल कर उस पोटली को यथास्थान पे लटका देता है और चला जाता है। अब उसे ये डर है वो हाईवे से होकर नहीं जाएगा, बल्कि वह दूसरे रास्ते से जाता है और एक जंगल में प्रवेश कर जाता है। जंगल की उस भूल भुलैया में वह निकल नहीं पाता है, परेशानी में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है। और बाद में ये महसूस करता है जिस तरह से मानो जो है इस चूहेदानी रूपी जो है जाल में फंस जाता है, उसी तरह माया मोह रूपी जो संसार है, माया मोह रूपी जो संसार है, उसमें आज मैं खुद ही अपने इस भ्रम जाल में फंस गया हूँ, माया मोह के जाल में फंस गया हूँ। और इस तरह से वह एक जो है हथौड़े की थंपिंग की आवाज़ वो इस तरह से सुनता है और ज़ोरदार थंपिंग की आवाज़ को सुनने के बाद वह पुनः जो है ज़ोरदार थंपिंग की आवाज़ को सुनकर वह पुनः जो है उस तरफ जाता है जहाँ पे जो है रैमसोज आयरन वर्कशॉप है, रैमसोज आयरन वर्कशॉप है, जहाँ पे गोल्ड स्मिथ जो है अपना काम कर रहा है। वह वहाँ पे अनुमति रुकने की मांगता है। वह जो है उसकी तरफ बहुत विचित्र मुद्रा में देखकर सिर हिला देता है और वो वहाँ पे लेट जाता है। बाद में जो है आयरन मास्टर जो है वहाँ पे आता है और उसे ये लगता है कि कैप्टन वैन स्टेल है और वह उससे मिलना चाहता है, उसे अपने घर ले जाना चाहता है, क्योंकि अगले दिन जो है क्रिसमस का त्यौहार है, वह उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। और वो ये भी कहता है कि कैप्टन तुमने रिजाइन क्यों कर दिया, तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था। और उसे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मानता नहीं है, जाता नहीं, क्योंकि उसको डर है कि वो 30 क्रोनोर चुराए कहीं पकड़ा न जाए। बाद में वो चला जाता है और उसकी बेटी एडलाविल मैनसन भी वहाँ पे आ जाती है और एडलाविल मैनसन रिक्वेस्ट करती है और उसकी रिक्वेस्ट पे वो व्यक्ति जो रैट ट्रैप सेलर है वो आ जाता है और उसके घर जाता है। वहाँ पर जाकर बाद में उसके कपड़े बड़े गंदे हैं, बहुत ही गंदी दशा में वो दिखता है और गंदी दशा में दिखने के बाद स्नान करने के बाद जब वो निकलता है तो स्नान करने के बाद जब निकलता है तो उसे वो देखता है और जो आयरन मास्टर है वो देखता है कि ये तो मेरा मित्र नहीं है। वो कहता है तुमने तो मेरे साथ धोखा किया है, तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इस पर रैट ट्रैप सेलर ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे धोखा दिया, मैं तो अपने मर्जी से आया नहीं, आपने मुझे जो है कह के ले आया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और जब वो निकलने ही वाला था कि उसकी बेटी एडलाविल मैनसन जाके दरवाज़ा बंद कर देती है और अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार है, इसलिए उसके घर से किसी को भगाया जाए ये एक नैतिकता नहीं है। और वो उसे रोक लेती है, अपने पिता को समझाती है और इसके बाद उसे भोजन दिया जाता है और वो सोफे पे वहाँ पे सो जाता है। ऐसे सोता है जैसे उसने कभी जो है अपने जीवन में आराम की निद्रा ही ना पाई हो, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, रैट ट्रैप सेलर है, जो है सड़कों पे गलियों में भटकता हुआ इंसान है। आज उसे इतना आराम मिला है कि उसे जीवन में पहली बार इतनी शांति और इतना प्रेम और इस तरह का भोजन उसे प्राप्त हुआ है। वह सोया रहता है और पुनः जो है उसे
क्रिसमस की संध्या पे जगाया जाता है और वहाँ के खुशनुमा माहौल को वह देखता है, फिर भोजन करता है, फिर सो जाता है। अगले दिन वो जो है चला जाता है और उसके मन में ये आता है कि इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति एडला वेलमैनसन ने जो हमें दी है और मैंने 30 क्रोनोर को जो चुराया है, वो एक पैकेट छोड़ जाता है जिसमें 30 क्रोनोर को रख देता है और एडला वेलमैनसन के लिए एक पत्र छोड़ता है जिसमें वो धन्यवाद पत्र है। उसमें वो लिखता है कि आपने जो मुझे स्नेह और सम्मान दिया है, ये उसका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बड़ा आभार है। और एडला वेलमैनसन और उसके पिताजी चर्च में सुनते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो कि गरीब आदमी है, जिसके 30 क्रोनोर चुरा लिए गए हैं, वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि रैट ट्रैप सेलर ने ही चुराया है। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे चांदी के चम्मच भी वो चुरा ले गया होगा। आते ही अपने घर पे वे पूछते हैं, और पूछने के बाद वो ये कहते हैं नौकर से कि कुछ चुराया तो नहीं। वो बताता है कुछ नहीं चुराया, बल्कि एक पैकेट छोड़ा है। और एडला वेलमैनसन जब खोलती उस पैकेट में, तो उसमें 30 क्रोनोर प्राप्त होते हैं और एडला वेलमैनसन बड़ी ही प्रसन्न हो जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चोरी करता था वो बदल गया है। और इस तरह से एडला वेलमैनसन बड़ी प्रसन्न होती है कि उस बूढ़े आदमी के 30 क्रोनोर को उस रैट ट्रैप सेलर ने छोड़ दिया है, अर्थात उसने अपना मन बदल लिया है। वो लिखा भी है कि अब मैं अपने विचार बदल रहा हूँ और मैं कुछ दूसरा कार्य करूँगा, एक अच्छा व्यक्ति बनूँगा। तो ये कहानी अंत में ये कंक्लूजन देती है, निष्कर्ष देती है कि एक बुरा व्यक्ति भी अगर उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए तो वो अपने जीवन में अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ सकता है, अच्छा बन सकता है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें ये जो भौतिक संपदा है, इस भौतिक संपदा के माया मोह में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा की भूख होती है। हर व्यक्ति को सम्मान, स्नेह और प्रेम मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़्यादा मॉरल शिक्षा प्रदान करती है कि हम एक अच्छा इंसान बने, हमारी परिस्थितियां चाहे जो हो। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। आई होप दैट यू विल गेट द स्टोरी इन अ राइट वे। सम क्वेश्चंस आर ऑन द व्हाइट बोर्ड. आई होप दैट यू विल get the brief summary. By getting the brief summary, you will answer the question. The first question is that who was the rat trap seller? How did he make them? Next question is that what idea about the whole world did strike in his mind once? Third question is that who gave him shelter for the night and why? Fourth question, why did the rat trap seller return to the crofter's cottage? The questions are too easy. If you will see the video in a concentrate way, very easily you can answer the question in a right way very easily. I hope that you will answer the question and you will get the brief summary of the lesson. Thank you so much. Have a nice day. Have a good day.